تو یہ بات ہے 10 جولائی 1785 کی۔ رینسبرگ جرمنی، رات کا وقت ہے، آسمان پہ کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ ایک کیتھولک پریسٹ گھوڑے پہ سوار کسی خفیہ مشن پر نکلا ہے۔ اس کے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں ایسے ڈاکیومنٹس جو یورپ کی سب سے خفیہ سیکرٹ سوسائٹی کا راز کھولتے ہیں۔ اچانک آسمان سے بجلی گرتی ہے سیدھا اس کے اوپر، وہ وہیں مر جاتا ہے۔ جب لوگ اس کی لاش کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے کپڑوں میں سے کاغذات ملتے ہیں، ایسی فہرست، ایسی تفصیلات جو ایک سیکرٹ سوسائٹی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیتی ہے۔ لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے اصلی فوٹیج، بالکل اصلی فوٹیج جو آج بھی موجود ہے، جس میں دنیا کے سب سے پاورفل لوگ ایک خفیہ جنگل میں اکٹھا ہو کر ایک عجیب و غریب ریچول کرتے ہیں۔ وہ فوٹیج خود دیکھ کر آپ ڈیسائیڈ کریں گے سچ کیا ہے اور افواہ کیا ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا ایلومیناٹی اصل میں تھی کیا، اور یہ ہمیشہ سے اتنی خوفناک کیوں لگتی ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1776 میں بواریا کے ایک چھوٹے سے شہر انگولسٹیڈ میں۔ یہاں کے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایک پروفیسر جان ایڈم، صرف 27-28 سال کا۔ جان ایڈم خود جیسٹ پریسٹ کے زیر تربیت پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کا ماننا تھا کہ چرچ کا لوگوں کی زندگی اور سیاست سے بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ 1 مئی 1776 کو اس نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی۔ شروع میں نام تھا پرفیکٹبلسٹ۔ 2 سال بعد 1778 میں اسے نام دیا گیا ایلومیناٹن۔ لیٹن میں ایلومیناٹی مطلب روشن خیال لوگ۔ شروع میں یہ صرف مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن جو اس کے اندر ہونے لگا وہ کسی بھی نارمل کلب جیسا نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں اس حصے پہ جو شاید سب سے زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، یہ سوسائٹی اپنے ممبر سے اصل میں کرواتی کیا تھی۔ یہ جواب کسی کانسپریسی ویب سائٹ سے نہیں ہے، بلکہ ویریفائڈ ہسٹوریکل ریکارڈ، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، یونیورسٹی آرکائیو اور خود ورشپ کی اپنی لکھی ہوئی چٹھیوں سے آتا ہے۔ نمبر 1، ریکروٹمنٹ صرف خاص لوگوں کو ہوتا تھا۔ ورشپ صرف کسی کو بھی ممبر نہیں بناتا تھا، اس کا ٹارگیٹ ہوتا تھا امیر، پاورفل اور با اثر خاندانوں کے نوجوان۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، کورٹ آفیشل، نوبلٹی، 30 سال سے اوپر کے لوگ شروع میں ٹرسٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، ہر ممبر کی اصلی پہچان چھپائی جاتی تھی۔ ہر نیا ممبر اپنا اصل نام چھوڑ کر ایک کوڈ نیم رکھتا تھا، زیادہ تر رومن یا گریک ہسٹری سے۔ خود ورشپ اپنا نام رکھتا تھا اسپارٹس، اس غلام کے نام پہ جس نے روم کے خلاف بغاوت کی تھی۔ نمبر 3، سب سے شوکنگ حصہ، ممبرز ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے تھے۔ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق ورشپ نے اپنے ہی آرگنائزیشن کے اندر انٹرنل اسپائی نیٹ ورک بنایا تھا۔ ہر ممبر کو دوسرے ممبر کی ایکٹیویٹیز اور کریکٹر کے بارے میں رپورٹ لکھی کر پورا بھیجنی پڑتی تھی۔ مطلب آپ کا اپنا دوست، آپ کا اپنا بھائی خود آپ کی خبر آپ کے سپیریئر کو دے رہا ہوتا تھا۔ نمبر 4، سیل اسٹرکچر، تاکہ کوئی بھی پوری تصویر نہ دیکھ سکے۔ ممبرز کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں بانٹا گیا تھا، اور زیادہ تر لوگوں کو صرف اتنا پتا ہوتا تھا کہ ان کا سیدھا سینئر کون ہے، اس سے اوپر کون ہے یہ انہیں کبھی نہیں بتایا جاتا تھا۔ کمپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں، جیسے ماڈرن انٹیلیجنس ایجنسی یوز کرتی ہیں۔ نمبر 5، رینک سسٹم، جو بہت عجیب ناموں تک جاتا تھا۔ شروع میں صرف 3 درجے تھے، نوائس، منرل، ایلومیناٹس، لیکن جیسے جیسے آرگنائزیشن بڑھتی گئی اس کے اوپر اور درجے ایڈ ہوئے، جن کے نام خود حیرت انگیز ہیں: پریسٹ، ریجنٹ، میگس اور سب سے آخری کنگ۔ جتنا اوپر ممبر جاتا اتنی خفیہ نالج اور دوسرے ممبر کی اصلی پہچان اسے مل جاتی تھی۔ نمبر 6، پوری طرح وفاداری، اوبیڈینس کا وعدہ۔
हर मेंबर को अपने सुपीरियर के सामने मुकम्मल ओबीडियंस का वादा करना पड़ता था बिना सवाल किए। एक जरूरी बात, कुछ कॉन्स्पिरेसी सोर्सेज ये भी कहते हैं कि वर्षक मेंबर्स को ब्लैकमेल करता था। ये दावा 20वीं सेंचुरी की कॉन्स्पिरेसी पैम्फलेट से आता है, जिसका कोई हिस्टोरिकल आर्काइव प्रूफ नहीं मिलता जो वेरीफाइड है। स्पाइंग, सीक्रेसी और स्ट्रिक्ट हायरार्की, ब्लैकमेल वाला हिस्सा अनवेरीफाइड है। ये सिस्टम इतना इफेक्टिव था कि सिर्फ कुछ सालों में इल्यूमिनाटी जर्मनी से निकलकर फ्रांस, इटली, डेनमार्क और पोलैंड तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से 3000 मेंबर तक। लेकिन जितनी तेजी से ये फैली, उतनी ही तेजी से इसका अंजाम भी आने वाला था। 1784 में बवारिया के इलेक्टर ड्यूक कैरी थियोडर ने तमाम सीक्रेट सोसाइटीज पर पाबंदी लगा दी। मार्च 1785 में एक दूसरा एडिक्ट आया। इस बार सीधा इल्यूमिनाटी को नाम लेकर टारगेट किया गया। और फिर आता है वही लम्हा जो हमने शुरू में देखा। जुलाई 1785, रेजनबर्ग एक प्रीस्ट जॉन जेकब लांस बिजली गिरने से मौत के घाट उतर गया और उसके पास से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले। इंटरेस्टिंग बात, खुद इस वाकये के इर्द गिर्द भी काफी कंफ्यूजन रहा है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं लांस खुद इल्यूमिनाटी का कुरियर था जो उनके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाता था। कुछ का कहना है कि असल कुरियर कोई और था जिसका नाम उसे मिलता जुलता था और बाद के राइटर्स ने दोनों को मिला दिया। ये खुद इशारा है कि इल्यूमिनाटी की कहानी में शुरू से ही फैक्ट और मिथ गुडमुड होते रहे हैं। जो भी हो, उन डॉक्यूमेंट्स के मिलने के बाद बेवेरियन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। एक और फाउंडर जेवियर वॉन के घर से सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स मिले। पूरे प्लान, मेंबरशिप लिस्ट, इंटरनल लेटर्स। 1785 और 1787 में बावारियन गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल राइटिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेक्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी के नाम से पब्लिश किए और यूरोप के तमाम बादशाहों को भेज दिए। इसके बाद बिशप को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, बावारिया से भी निकाल दिया गया। वो गोता में रहकर अपनी सफाइयां, किताबें लिखता रहा और 1830 में गुमनामी में मर गया। इल्यूमिनाटी जो कभी 2000 से ज्यादा मेंबर्स रखती थी, सिर्फ 9 साल में पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब सवाल आता है कि इल्यूमिनाटी अगर 1785 में ही खत्म हो गई थी तो 240 साल बाद भी लोग इसका नाम क्यों लेते हैं? जवाब मिलता है 1797 में। फ्रांस में रेवोल्यूशन अपने खूनी दौर से गुजर चुकी थी और सब जानना चाहते थे इतना भयानक तब्दीली इतनी जल्दी कैसे हो गई। एक फ्रेंच प्रीस्ट अभी अगस्टन ने थ्योरी पेश की, रेवोल्यूशन कोई ऑर्गेनिक अपराइजिंग नहीं थी बल्कि एक खुफिया साजिश थी जिसमें इल्यूमिनाटी का हाथ था। कोई हिस्टोरिकल प्रूफ इस दावे के साथ नहीं था। इल्यूमिनाटी 1785 में खत्म हो चुकी थी। रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुई, लेकिन थ्योरी थी, कन्वीनियंट थी, लेकिन लोग यकीन करने लगे। अगले 200 सालों में इल्यूमिनाटी को हर बड़ी तब्दीली का जिम्मेदार ठहराया गया। लिंकॉलिन की मौत, मोजार्ट की मौत, वर्ल्ड वॉर और आजकल सेलिब्रिटीज, बैंक्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक। लेकिन जो इल्यूमिनाटी हिस्ट्री बुक्स में दर्ज है वो सिर्फ 9 साल चली और उसका आज की किसी भी चीज से कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। अब सवाल आता है, अगर इल्यूमिनाटी खत्म हो चुकी है तो ये साइंस क्या है? तिकोन साइन, एक आंख वाला साइन, और सेलिब्रिटीज इस तरीके के साइन क्यों दिखाते हैं? अब जो बात आज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि फलां फेमस सेलिब्रिटी की फोटो में इल्यूमिनाटी साइन दिख रहा है, हाथ से बनाया गया ट्रायंगल, एक आंख छुपाकर ली गई पोज या स्टेज डिजाइन में एक ऑल सीइंग आई सिंबल। और फिर सवाल आता है, क्या ये इस बात का प्रूफ है कि वो शख्स इल्यूमिनाटी का मेंबर है? जवाब है नहीं, और वजह सिंपल है। इस वीडियो में हम सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, जैसा हमने देखा, असल इल्यूमिनाटी 1785 में खत्म हो चुकी थी। आज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें कोई ज्वाइन हो सके। मेंबरशिप का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं। दूसरी बात, ऑल सीइंग आई सिंबल, जो सबसे ज्यादा मशहूर है और लोग सबसे ज्यादा ढूंढते हैं इस सिंबल को।
इल्यूमिनाटी से ज्यादा पुराना है ये सिंबल असल में क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी को दुरुस्त करता है और ये 1782 में इल्यूमिनाटी मशहूर होने से पहले भी यूएस द ग्रेट सील और डॉलर नोट पे आ चुका था। फ्रीमेसन्स भी इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये सिंबल दिखाना किसी चीज को प्रूव नहीं करता कि ये शख्स या ये ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी है। तीसरी बात और सबसे साइकोलॉजिकल बात, इंसान का दिमाग पैटर्न ढूंढता है, चाहे वो मौजूद हो या ना हो। इसे एपोफेनिया कहते हैं। किसी भी सेलिब्रिटी की हजारों फोटोज में से किसी न किसी में हाथ का एंगल ट्रायंगल जैसा लग ही जाएगा, सिर्फ कोइंसिडेंस से। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, कुछ आर्टिस्ट जानबूझकर ऐसा सिंबलिज्म यूज करते हैं, लेकिन वजह सिर्फ होती है ब्रांडिंग और शॉक वैल्यू, ना कि असल मेंबरशिप। वो ऐसे सिंबल और ऐसी हरकतें इसलिए करते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग हो, लोग उस बारे में बात करते हैं, उनकी ज्यादा मशहूरियत होती है। मिस्ट्रीज इमेजेस बनाना एक मार्केटिंग टेक्टिक है। मतलब एक हाथ का एंगल, एक फोटो, एक सिंबल, ये कभी भी किसी शख्स के किसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर होने का लीगल या हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं बन सकता। याद है हमने शुरू में एक रियल फुटेज दिखाने का वादा किया था। यहाँ है असल वेरीफाइड रियल वर्ल्ड केस, लेकिन ध्यान रहे ये इल्यूमिनाटी नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग आज भी मौजूद एलीट सीक्रेट क्लब है जिसे लोग अक्सर इल्यूमिनाटी समझ बैठते हैं। इसका नाम है बोहेमियन क्लब। 1872 में सैन फ्रांसिस्को में बना। हर साल जुलाई में इसके अमीर और पावरफुल मेंबर कैलिफोर्निया के जंगल में बोहेमियन ग्रुप जमा होते हैं। अटेंडीज की लिस्ट में यूएस प्रेसिडेंट्स, बिजनेस लीडर्स और सेलिब्रिटीज तक शामिल रहे। यहाँ एक सेरेमनी होती है जिसे सेरिमेशन ऑफ केयर कहते हैं। 1881 से हर साल परफॉर्म की जाती है। इसमें एक 40 फुट लंबी उल्लू की स्टेचू के सामने एक छोटा पुतला जलाया जाता है जिसे केयर का नाम दिया जाता है, मतलब सिंबॉलिकली अपनी फिक्र परेशानियों को जलाना। 15 जुलाई 2000 को एक रिपोर्टर एलेक्स जॉन्स सीक्रेटली कैमरा लेकर ग्रुप के अंदर दाखिल हुआ और इस पूरी सेरेमनी की रियल फुटेज फिल्म कर ली। वो जॉन्स ने दावा किया कि ये ऑकल्ट ह्यूमन सैक्रिफाइस रिचुअल है, लेकिन जब दूसरे जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री मेकर जैसे जॉन रॉनसन ने इसे देखा, उनका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने इसे एक स्क्रिप्टेड थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस कहा जो 1881 से लिखा और परफॉर्म किया जा रहा है। उनका अपने अल्फाज में एक ओवरग्रोन फ्रेड पार्टी के जैसा। ये सेरेमनी रियल है, वो लोग रियल हैं, रियल प्रेसिडेंट्स, रियल बिजनेस लीडर्स, लेकिन जो इसकी सैटेनिक सैक्रिफाइस वाली कहानी है उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ना कोई मिलता है। सिर्फ एक ड्रामेटिक मॉक रिचुअल है जो सदियों से एक प्राइवेट क्लब अपने मेंबर्स के लिए परफॉर्म करता आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो हमने इल्यूमिनाटी के साथ देखा। कुछ असली सेक्रेसी प्लस कुछ असली एलीट लोग, बहुत सारी बिना प्रूफ कहानियां, एक मिथ जो कभी नहीं मरता। इल्यूमिनाटी की असली कहानी अजीब तरह से खुद में एक सबक है। एक छोटी सी सोसाइटी जो सिर्फ 9 साल चली, इतनी खौफनाक मिथ क्यों बन गई कि 250 साल बाद भी लोग इसका नाम लेकर कांपते हैं। शायद वजह यह है कि अमीर और पावरफुल लोग वाकई खुफिया जगहों पर मिलते हैं। बोहेमियन ग्रुप इस बात का सबूत है, लेकिन सीक्रेसी का मतलब ये नहीं कि वहाँ वर्ल्ड डोमिनेशन की साजिशें हो रही हैं, और ना ही एक हाथ के एंगल किसी फोटो में कुछ साबित करता है। इंसान को नामुमकिन या बिखरी हुई दुनिया से ज्यादा ये मानना आसान लगता है कि कोई ना कोई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हिस्ट्री हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। असल इल्यूमिनाटी की कहानी बिना किसी मिलावट के खुद इतनी ड्रामेटिक है कि उसे किसी मिथ
की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम अगली वीडियो इसी तरीके के कोई सीक्रेट क्लब के बारे में बनाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं, क्या इल्यूमिनाटी आप क्या समझते हैं कि सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। जो वेरीफाइड हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे हमने उन पे बात करी है। लोग क्या कहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन जो रियल प्रूफ्स हैं और हिस्ट्री है वो ये कहती है। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है? कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।